Hey everyone, once again this is your English instructor from Sniper Defense Academy Meerut. I hope you all are safe and doing well. So this is the third video of our series Speak in English. If you haven't checked my first two videos, I have dropped the link in the description box. Go check them out. So talking about our today's topic, which is idioms and phrases. So just a bit on information, in this video we'll learn some basic idioms which we can use in our daily life conversation, and in the part 2 of this video we'll learn about phrases. So let's just understand the meaning that what are idioms. Idioms are a group of words, some sentences, some short sentences which we use to sound more expressive and to sound more poetic. And the meaning of these idioms cannot be understood by separately understanding the meaning of words. अगर आप if you let an example, जैसे कि something is fishy, in Hindi we have, इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, वी हैव दाल में कुछ काला है, बट इफ़ यू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश इट इज़ समथिंग इज़ फिशी. नाउ फिशी का अगर हम वर्ड ले लें, फिर टेक इट लिटरल, तो मतलब फिश से रिलेटेड कुछ लग रहा है, कुछ फिश है, कुछ ऐसा, बट नो, इसका मीनिंग ये नहीं है. सो द मीनिंग ऑफ दीज ईडियम्स, आपको हर एक मीनिंग, हर एक वर्ड के मीनिंग पे नहीं जाना है. यू हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ दीज ईडियम्स बाय submerging the all words and taking a full sentence. So the first question arises in our mind, which is, why do we use idioms and phrases? Now we use idioms and phrases to, just a second, yes, so we use idioms and phrases to sound expressive and poetic. To sound expressive and poetic. Now moving on to our first idiom, which is turn a blind eye. Turn a blind eye. Now its meaning is to pretend not to notice intentionally. ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो intentionally. You have this thing in your mind कि हाँ मुझे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, let's just forget it or let it be. तो you can use this idiom pretend not to notice or intentionally, which is turn a blind eye. For example, she knows he is lying to her. वो लड़की जानती है, the girl we are talking about, she knows कि जो लड़का उससे बात कर रहा है वो उससे झूठ बोल रहा है, but still she is choosing to turn a blind eye to the situation. वो इस चीज़ को जाने दे रही है, कोई बात नहीं, I know he is lying, लेकिन let it be, जाने दो. So here you can say the girl has turned a blind eye. For example, you are in school and आपकी क्लास में बच्चों ने मेस कर रखा है, एवरीवन इज शाउटिंग एंड देयर इज अ न्यूइसेंस, अ टोटल न्यूइसेंस, एंड ऑल ऑफ अ सडन द प्रिंसिपल कम्स इन द क्लासरूम. डिस्पाइट सीइंग एवरीथिंग, शी एक्ट्स लाइक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, सब कुछ देखते हुए भी कुछ देखा नहीं, शी जस्ट पास्ड आउट, वहाँ से चली गई. सो हेयर यू कैन से द प्रिंसिपल टर्न्ड ए ब्लाइंड आई. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट idiom, विच इज सी आई टू आई. अब इसका मतलब ये नहीं है आंखों में आंखें डाल के देखना. इट मीन्स टू अग्री विद समवन, टू अग्री विद समवन, राइट. अग्री का अपोजिट क्या होता है? द अपोजिट और द एंटोनिम इज डिसअग्री. टू अग्री विद समवन, for example, my sisters do not see eye to eye with me about the decoration. For example, you and your sister decided to decorate your room, और आप बोल रहे हो कि I want the wallpaper to be red, but your sister is saying कि नहीं मुझे red wallpaper अच्छा नहीं लगता, I want the wallpaper to be blue. तो यहाँ पे you are not agreeing with each other. So here you can say my sister do not see eye to eye with me about the decoration. Decoration के बारे में आप दोनों अग्री नहीं कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप हो एंड देर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. अब बेस्ट फ्रेंड्स हो तो दिस मीन्स दैट यू हैव द सेम माइंड्स, आपकी थिंकिंग एक जैसी है, आपके ओपिनियंस हैं, भले ही सेम ना हो लेकिन सिमिलर हैं. लेकिन कुछ चीज़ों में यू कैन से माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई समटाइम्स डू नॉट सी आई टू आई. ओके, जानते हुए कि हाँ आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपके सेम ओपिनियन, बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन होते हैं. You do not agree with each other.
Next we have once in a blue moon. Once in a blue moon, which means an event that occurs infrequently. Now here the antonym of infrequently is frequently. फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जो चीज़, जो कोई इवेंट है, कोई ऐसी इवेंट है या फिर कुछ भी है, वो नॉर्मली होती रहती है ऑन रेगुलर बेसिस, आई कैन से. एंड इनफ्रीक्वेंटली मीन्स अपोजिट ऑफ इट, जो कि वंस इन अ वाइल होता है, कभी कभार होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ओनली वॉच टीवी वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून. फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. आई जस्ट लव रीडिंग. सो आई डू नॉट प्रेफर गोइंग आउट ऑफ होम. सो आई गो आउट ऑफ होम वंस इन अ ब्लू मून. या फिर अगर मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, मैं कभी कभार टीवी देखती हूँ. आई ओनली वॉच टीवी वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट वी हैव अ पीस ऑफ केक. Now don't take it literally, it doesn't mean कोई पीस केक का. It means something is very easy. जो कोई टास्क है बहुत ही ईजी है आपके लिए. For example, the English test was a piece of cake for me. जो इंग्लिश का जो टेस्ट था वो इतना ईजी था, मैंने इतने अच्छे से, इतने आराम से उसे सॉल्व कर दिया कि इट वॉज जस्ट ए पीस ऑफ केक फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर आपको बोलती हैं कि ऑन वेंसडे यू हैव टू प्रेजेंट ए प्रेजेंटेशन. आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है अपनी क्लास में. तो आपने फ्रेंड से बोल रहे हो मुझे तो प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट. पीस ऑफ केक. नेक्स्ट वी हैव टू फील अंडर द वेदर. टू फील अंडर द वेदर मीन्स टू नॉट फील वेल. जब आप अच्छा फील नहीं करते हो, जब आपकी तबीयत ख़राब है या फिर कुछ भी है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली अंडर द वेदर टुडे, आई हैव टेरेबल कोल्ड. अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, इफ़ यू आर नॉट वेल. तो जब आपकी तबीयत ख़राब है, यू कैन से, इफ़ द टीचर आस्क कि आप क्यों नहीं आए थे येस्टरडे, आप क्यों नहीं आए थे, तो यू कैन से आई वॉज अंडर द वेदर, आई हैड कोल्ड, और आई वॉज हैविंग फीवर. अंडर द वेदर. नेक्स्ट वी हैव सिट ऑन द फेंस. Now it doesn't mean कि आप fence. Now what is the meaning of fence? Let's just talk about it. Fence का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है या फिर आपका गार्डन है या फिर आपका फार्म है, तो उसकी बाउंड्री सेट करने के लिए, टू सेट द बाउंड्री ऑफ योर फार्म और योर हाउस, आप फेंस लगाते हो ना, साइड साइड में बाउंड्री होती है. सो दिस इज वॉट वी कॉल फेंस. नाउ टू सिट ऑन द फेंस, इट डजेंट मीन कि आप फेंस के ऊपर बैठ जाओ. इट मीन्स टू बी अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन. टू मेक अ डिसीजन, जब आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या तो आप अनेबल हो, यू जस्ट कांट मेक अप योर माइंड कि यार मैं क्या चूज़ करूँ, यहाँ पे जाऊँ या फिर यहाँ पे जाऊँ, इस चीज़ को खरीदूँ या इस चीज़ को खरीदूँ. या फिर अनविलिंगली, आप चाहते ही नहीं हो किसी चीज़ को डिसाइड करना कि यार मैं नहीं चाहता इसकी हेल्प करना या फिर इसकी हेल्प करना, मुझे नहीं समझ आ रहा. तो एग्जाम्पल, यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव टू डिसाइड हुज साइड यू आर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके भाई की लड़ाई हो जाती है एंड बोथ ऑफ यू गो टू योर मदर. आप अपनी मम्मा के पास जाते हो एंड यू से कि मम्मा बताओ किसकी मिस्टेक है, किसका फॉल्ट है, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसने गलती करी है. और आपका भाई बोलेगा नहीं दीदी ने गलती करी है. तो हेयर योर मदर कैन से आई कैन नॉट डिसाइड, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हुज फॉल्ट इज दिस, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, आई कांट डिसाइड. सो टू बी अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन. नेक्स्ट वी हैव You can't judge a book by its cover. Now ऐसा मत सोचना कि इस इडियम को हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई बुक है, मैं बोल रही हूँ कि इस बुक को ख़रीद लो और मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं ये बुक मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो दिस इज़ नॉट यूज्ड. इट्स मीनिंग इज़ टू नॉट जज समवन और समथिंग. नाउ हेयर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पर्सन, समवन, सिर्फ इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए समथिंग. To judge someone or something based on its appearance. Now what is the meaning of appearance? Appearance is how you look or how something looks. For example, आपके भाई का रूम आपके रूम से ज़्यादा अच्छा लगता है, अपीयरेंस में उनका रूम ज़्यादा अच्छा है. मेरी ब्लू ड्रेस मेरी वाइट ड्रेस से अपीयरेंस में ज़्यादा अच्छी है, दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती है वो. तो टू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस पे ही जाकर उसको जज नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के या फिर किसी भी इंसान के लिए. दिस इज़ ट्रू. आई थॉट दिस इज़ नो ब्रांड ब्रेड. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो ब्रांड ब्रेड? नो ब्रांड मीन्स कई ऐसी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रेस लेके आए हो, ओके, आप ड्रेस लेके आए हो कहीं से
और उस पर कोई लेबल नहीं है, कोई भी ब्रांड का नेम उस पर मैंशनड नहीं है, एडिडास का है, प्यूमा का है, सो इट इज़ अ नो ब्रांड ड्रेस, उसका कोई ब्रांड नहीं है। सिमिलरली जब हम ब्रेड खरीदने जाते हैं इन द मार्केट, तो आपने देखा होगा कि कुछ ब्रेड ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, वो पैक्ड हुए होते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, एंड नथिंग इज मेंशनड ऑन इट कि एक्सपायरी डेट कब है, ये वो कुछ नहीं होता है उनमें। यूजुअली बेकरी में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। So I thought, so the person here we are talking about thought that this no brand bread would be horrible, ये इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा या फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। But turns out you can't judge a book by its cover, तो आप चीज़ों के अपीयरेंस पे जाकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में कैसा है। ओके, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग डजंट लिटरली मीन यू हैव टू ब्रेक अ लेग, आपको टांग ही तोड़ देनी है। इट मीन्स गुड लक। Whenever you want to wish luck to your friend or anyone, so instead of saying good luck, all the best, you can say break a leg, break a leg. Now the sentence we have here is break a leg Raj, I am sure you will perform great. Okay, break a leg Raj, I am sure you will perform great. तो जब भी आप किसी को good luck बोलते हो, all the best बोलते हो, instead of saying this you can either say break a leg. Next we have call it a day. Now you must have heard or you must have seen in pictures also, in movies also, कि जब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जब वो पैकअप कर देते हैं, जब वो काम करना बंद कर देते हैं, ओके आज की शूटिंग हो गई, नाउ लेट्स जस्ट पैकअप, तो पैकअप का भी सेम ही मीनिंग है। लेट्स पैकअप का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ओके किसी चीज़ पे काम करना बंद कर देना। एंड व्हेन यू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग यू कैन से कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। For example, I am tired of practicing these dance moves. Let's just call it a day. तो मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये डांस मूव्स, बट नाउ आई एम टायर्ड, आई कांट डू इट एनी मोर, सो लेट्स जस्ट कॉल इट अ डे। ओके, एंड इफ़ यू आर, अगर आप रात को कुछ काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रात को आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी है, यू आर स्टडिंग एंड यू आर टायर्ड ऑफ स्टडिंग एंड यू डिसाइड टू स्लीप नाउ. So you can say that let's call it a night, I'm going to sleep. Let's call it a night. Now the last idiom we have is something is fishy. We have the same idiom in Hindi also, जिसको हम बोलते हैं दाल में कुछ काला है. Now this doesn't literally mean कि आपके पास दाल है और उसमें कुछ काला पड़ा हुआ है. इसका मीनिंग ये नहीं होता है. Something is fishy, which means seeming or likely टू रॉन्ग. जब आपको इंटेंशन आती है, जब आपको लगता है कि हाँ यार इसमें कुछ तो गलत है, कुछ तो हो रहा है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल, देयर इज़ क्लियरली समथिंग वेरी फिशी इन दिस बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप बस एस्टिमेट कर रहे हो कि हाँ यार इस बिजनेस में ना कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दाल में तो कुछ तो काला है, यू कैन से समथिंग इज़ फिशी, राइट? समथिंग इज़ fishy. Let's just revise all the idioms. The first one was turn a blind eye. Turn a blind eye. Next we had see eye, to agree with someone. Next is once in a blue moon. Once in a blue moon, something, an event or something that occurs infrequently. Next we had a piece of cake, something which is very easy. Next we have to feel under the weather, to not feel well. जब आपकी तबीयत खराब होती है, you can use to feel under the weather. Sit on the fence. Sit on the fence means to be unable or unwilling to make a decision. Okay, you can't judge a book by its cover. Okay, next we have break a leg, which means when you're wishing luck to someone, good luck. Let's call it a day and you can also say let's call it a night. अगर आप रात की बात कर रहे हो, रात को ये पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ना बंद कर दिया, let's call it a night. दिन में अगर कुछ काम कर रहे हो, you are practicing your dance moves or your speech, okay, so you can say let's call it a day. Next we have last one, something is fishy. दाल में कुछ तो काला है, we have in Hindi, seeming or likely to be wrong. आपको estimate लगा लिया कि यहाँ पे कुछ तो गलत है. So this is all for today. I hope you enjoyed learning these new idioms. You can use these idioms in your daily life conversation, and so that you can sound more expressive and more poetic and more like a native speaker. Okay, so let's just call it a day and finish our idioms.
Till then, keep learning. Goodbye.